Hello students, welcome to another important lecture number 27 of Unit 4 Chemical Bonding and Molecular Structure. Today I show a very good trick to find out the type of hybridizations. Some faculty members of chemistry who use different types of techniques to find out the type of hybridizations. But this technique is quite good and it's a quite easy method to how to find out the hybridizations, because if we know the type of hybridizations, then we predict about the shape of the molecule as well as we forecast about the bond angles too, right? But for this purpose we have a different two ideas or two informations about that. First we have to find out the total valence electron, and then we have to find out the lone pair too, because this lone pair is definitely which alter the shapes as well as the bond angle. Okay, so let us start how to find out the types of hybridizations. First, what we have to do? First we have to find out the total valence electron in molecules. Okay, first we have to find out the total valence electrons in molecule. For example, in the case of CH4, right? So CH4, so how many valence electron in CH4? For example, if I having a example of CH4, we know that in carbon the valence electron is 4 and hydrogen is 4. So total 8 valence electrons are in methane. So first we have to find out the valence electrons. For example, if I having a ammonia, right? So find out the valence electron. So in nitrogen it's 5 and hydrogen 3. So total valence electron is 8, right? Okay. Then if valence electrons, then we have to divide the valence electron with some figure. If our answer is greater than 2 and less than 8, greater than 2 and less than 8, at that time we have to divide it by 2. If our answer total valence electron is greater than 8 and less than 56, so we have to divide it by 8. And if our answer is greater than 56, okay, so then divide it by 18. लेकिन यहाँ की हमें बहुत ज़रूरत नहीं होगी, ये दोनों में ही हमारा जो मेन है हाइब्रिडाइजेशंस वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा. Once again, find out the total valence electron. If our valence electron is greater than 2, then divide it by 2. 2 से ज़्यादा है तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे. अभी greater than 8 है, right? Greater than 8 यानी 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? Greater than 8 divided by 8. और जैसे मैंने आपको दिखाया 56 हो, ग्रेटर देन 56 देन डिवाइडेड बाय 18. ओके, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं डिवीजन करता हूं तो आपको मालूम है कि हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, रिमाइंडर होते हैं, डिवाइजर होते हैं और डिवाइडेड. ये जो हमें डिवीजन की जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उसका हम यूज करेंगे. जैसे मेरे पास यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मुझे 8 है तो यानी 8 है वो क्या है, तो मुझे डिवाइड क्या किससे करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा. सो 2 4 जा 8, सो 0. सो यहाँ पे मेरा जो 4, जो ये क्वेंशंट मेरा जो है 4, राइट? ये जो मेरा Q है 4. अच्छा, और दूसरा मेरे पास जो रिमाइंडर है वो तो 0 है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 है तो कोई अच्छा है. जैसे ये 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशंस होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 आता है मेरा क्वेंशन तो 2 में sp है, 3 में sp2 है, 4 में sp3 है, 5 में sp3d है, 6 में sp3d2 है, 7 में sp3d3 है. पर लेकिन ये मुझे कब लेने हैं? जब ये मेरा रिमाइंडर है मेरा वो 0 होना चाहिए, तो ही हम ये डेटा ले सकते हैं. मेरा बहुत शॉर्टकट है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैं आज के दिन प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे किस तरह से हम यहाँ पे लेना चाहते हैं. तो ये तो मुझे आंसर मिल गया, इसका 4 आंसर मुझे मिल रहा है. फिर एक बार मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे इसमें लॉन पेयर में भी जाना पड़ेगा, राइट? टू फाइंड आउट लॉन पेयर, इसमें लॉन पेयर है कि नहीं.
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मुझे देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है माइनस सराउंडिंग एटम्स मुझे देखना पड़ेगा। देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, तो मेरा मीथेन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मेरा आंसर 4 आया है। मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 है, यानी रिमाइंडर 0 है, तो मुझे अभी पूरा मेरा फोकस कहां पे रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पे रखना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या आया है 4, तो 4 का मतलब है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है आपको मालूम ही होता है ना कि इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, 2 की लिखा है, इसमें 2 हाइब्रिड है, 3 क्योंकि इसमें 3 है, 4 यानी इसमें 4 है, यानी इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, 4 है। अभी आप क्या कीजिए, इसमें लॉन पेयर है कि नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है sp3 होने की वजह से उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, 4, और उसके सराउंडिंग भी कितने हैं, 4, यानी इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है, यानी लॉन पेयर है इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब बेस्ट है कि ये जो मेरा मीथेन है वो परफेक्टली sp3 है, इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, तो परफेक्टली उसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होना चाहिए ना। हमें sp3 का तो शेप मालूम है, और इसमें लॉन पेयर नहीं होने की वजह से उसका बेस्ट एंगल मुझे 109 डिग्री 28 मिनट मुझे मिलेगा। आपको थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखिए एक एग्जांपल्स हम यहाँ पे समझना चाहेंगे। अभी आपको 2 काम करना, मेन तो मेरा यहाँ पे 2 काम है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव टू डिवाइड इट विद अ सर्टेन फिगर्स एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर एज वेल एज क्वेश्चन। ओके, अभी जो हमारा जो क्वेश्चन है, अभी रिमाइंडर 0 होने की वजह से मेरा क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, फिर मुझे लॉन पेयर भी देखना पड़ेगा। तो ये दोनों का मैं जैसा कॉम्बिनेशन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। देखिए अभी मैं एक के बाद एक मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। मेरे पास है अमोनिया, मैंने अभी आपको दिखाया था, उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 + 3 यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 यानी उसको तो मुझे 2 से ही डिवाइडेड करना पड़ेगा, 2 4 8 हो जाएगा, यानी ये 0 है। यानी मेरा जो क्वेश्चन मुझे जो मिल रहा है यहाँ पे वो मुझे क्या मिल रहा है 4, और मेरा जो रिमाइंडर है वो 0, यानी 4 + 0 यानी 4 ही है। ठीक है, तो ये तो 4 आ गया। 4 आने की वजह क्या है, इसके लिए इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन मिल गया है sp3, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन से हम इसका पता लगा सकते हैं कि उसका शेप क्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें लॉन पेयर भी बहुत बढ़िया रोल अपना VSEPR से वो यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड भी कर सकते हैं। तो मुझे लॉन पेयर देखना पड़ेगा। तो इसमें लॉन पेयर में किस तरह से देखता हूँ, देखिए इसमें कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है 4 है, माइनस उसमें आपने देखा हुआ है कि इसमें सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, तो क्या 3, यानी इसमें एक लॉन पेयर है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इसमें 4 बॉन्डिंग पेयर है और एक लॉन पेयर है। डेफिनेटली उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका शेप है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। हमें मालूम है उसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल है ना वो 109.28 से कम होके राइट कहां पे चला जाएगा, 107 के आसपास चला जाएगा। वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू दिस लॉन पेयर। 2 डिग्री आपको कम करना है, आपको एक लॉन पेयर है तो 2 डिग्री आप कम कर दीजिए। ठीक है, तो भी आपको पता भी चल सकता है। देखिए मैं आपको अभी मेरा मिशन क्या है आज का, 2 मिशन है मेरा। एक आप हाइब्रिडाइजेशन का भी पता चलेगा, अगर लॉन पेयर नहीं है तो जो हाइब्रिडाइजेशन का शेप है वही उसका रियल शेप है, अगर इसमें लॉन पेयर है तो उसका शेप ऑल्टर हो सकता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास है PCl5 जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, सॉरी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था, आई थिंक सो लेक्चर नंबर 25 जब हमने बैंड रूल्स या सब कुछ हमने पता लगा था। अभी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें ढूंढ लीजिए। फास्फोरस के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अब देखिए कि फास्फोरस में आपको देखना पड़ेगा ना उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस में। ओके, क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 7 5 35, तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 40 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी जो 40 फिगर है उसको तो मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 14 है वो तो ज्यादा फिगर है 8 से,
तो मुझे 8 से, तो 8 5 का क्या आया है, 40 आंसर आया मेरा। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो क्या है, 0 है। और मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या मुझे मिला है, तो मुझे 5 मिला है, यानी मेरा आंसर 5 ही है, डेफिनेटली 5 है। तो इसमें मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, 5 का मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होनी चाहिए, यानी sp3d है। अभी मेरा जो नेक्स्ट मिशन है वो आई हैव टू फाइंड आउट द लॉन पेयर। तो उसके जो सेंट्रल एटम है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, 5 है। उसके सराउंडिंग एटम भी कितने हैं, 5 है, यानी इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर 0 है, यानी बॉन्डेड पेयर ही है, सिर्फ बॉन्डेड पेयर 5 है और sp3d होता है। और कोई भी लॉन पेयर नहीं होने की वजह से हमें मालूम है उसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप, में पूरा नहीं लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिड शेप उसका मुझे मिलेगा और वहां पे बॉन्ड एंगल भी 120 और 90 ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि 120 इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है और 90 एक्सियल बॉन्ड एंगल मुझे मिल सकता है। ठीक है, अगर अभी मैं एक के बाद एक में आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशंस में आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी दूंगा। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे वाटर है, तो मुझे मालूम है कि वाटर था, पहले तो अब क्या करना पड़ेगा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 6 यानी 8 हुए। सो 8 तो हमें मालूम है 2 से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 2 4 = 8 यानी 0 आया है मेरा, यानी मेरा रिमाइंडर क्या है, 0 है। और मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या मुझे मिला है, 4, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 4 का मतलब इसमें sp3 हाइब्रिड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, यानी sp3 होगी। sp3 हो डेफिनेटली इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन sp3 के लिए उसका शेप ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन पेयर। तो लॉन पेयर के लिए मुझे इसमें देखना पड़ेगा कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सेंट्रल एटम O के पास 4 है और फिर उसके सराउंडिंग कितने हैं, तो 2 ही है, यानी इसमें 2 लॉन पेयर है। यानी मुझे ये पता चल गया ना कि बॉन्डिंग पेयर और लॉन पेयर कितने हैं। बॉन्डिंग पेयर कितने हैं मेरे पास, 2, लॉन पेयर कितने हैं, 2। ठीक है, तो इसका शेप डेफिनेटली मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन sp3 के लिए टेट्राहेड्रल देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे मालूम है उसका जो शेप है वो मुझे वी शेप या कई लोग उसको बेंट भी बोलते हैं। और बॉन्ड एंगल है वो 109.8 डिग्री में से कम होके 105 पे चला जाएगा। आपको क्या करना है, 109 में से 2 घटा दीजिए, 107 उसमें से भी 2 घटा दीजिए, सो नियर अबाउट 105 डिग्री के पास उसका बॉन्ड एंगल मुझे मिल सकता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, आपको आगे का VSEPR आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, फिर मैंने वैलेंस बॉन्ड थियरी भी समझाया था, आपने समझ लिया। अभी मैं आज को आपको ये जुगाड़ में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ऐसा जुगाड़ है कि आप जो भी MCQs होती है तो उसको फास्ट आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके शेप में भी आप जा सकते हैं कि आप कहाँ तक उसको समझना चाहते हैं। ओके फाइन, तो अभी मैं और आपके पास, जैसे मेरे पास एक SF6 है, देखिए SF6 है, तो SF6 में मुझे मालूम है कि सल्फर के पास कितने होते हैं, सल्फर के पास कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसके पास कितने होते हैं 42, यानी 42 + 6 कितने हुए, 48 हुए हैं। तो 48 को मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 6 = 48, यानी मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 है और मेरा जो क्वेश्चन है वो मुझे क्या मिला है, 6 मिला है, यानी टोटल आंसर तो मेरा 6 ही है। तो इसका मतलब 6 यानी इसमें sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। और अगर इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है तो उसका जो शेप है वो मुझे ऑक्टाहेड्रल मिलना चाहिए। फिर भी मुझे लॉन पेयर तो ढूंढना ही पड़ेगा। लॉन पेयर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सेंट्रल एटम के पास 6 है, माइनस उसके सराउंडिंग भी कितने एटम्स है, 6 है, यानी इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है, यानी सिर्फ बॉन्डिंग पेयर है, कितने है, 6 है, यानी ये 90 डिग्री के ऑक्टाहेड्रल में बेस्ट शेप में आपको ये SF6 है वो दिखाई देगा। कितना फास्ट हो रहा है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो पिछले 28 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी करनी पड़ेगी, आप देखेंगे, लेकिन ये बहुत बढ़िया है और आप फास्ट जितना भी हो सके इतनी फास्ट प्रोसेस से आप कुछ कर सकते हैं इसमें। कई बार मैंने देखा है कि मैं आपको एक और मेथड भी बताऊंगा, लेकिन इससे भी ये ज्यादा फास्ट मेथड मैंने आपको बताई है ताकि आपको पता चल सके। अभी देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूं। मेरे पास है XeO3, देखिए जेनॉन ट्राइऑक्साइड मैंने दिया हुआ है। ठीक है, मुझे मालूम है जेनॉन के बगल में कितने, इसमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इसके कितने होते हैं, 6 3 = 18 होते हैं, यानी ये टोटल कितने हो गए, 26।
ठीक है। अभी जो कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो 26 है उसको मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। तो 8 3 क्या हुआ 24, यानी यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए आप समझिए फिर से, यानी मेरे फर्स्ट में मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है 3 है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो फिर 2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो रिमाइंडर है उसको भी डिवाइड करिए 2 से करिए, तो 2 1 जा 2। अभी 0 आ गया, जहां तक 0 जा रहा है तब तक हमें करना पड़ेगा। अभी दोनों में जो मेरा क्वोशंट है वो क्या है 3, इसमें क्या है 1, यानी अभी टोटल क्या हो गया 4 का मतलब क्या हो गया sp3 होना चाहिए। ये थोड़ा आपको समझ में आया, फिर से मैं दिखाता हूं। ज़ेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, एक ऑक्सीजन के 6 है, यानी 3 के 18 है, यानी दोनों का जो एडिशन है वो 26 है। इसको मैंने क्योंकि 26 है वो ग्रेटर देन 8 है, यानी मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 3 जा 24 यहाँ पे मिला। ये मेरा 3 है वो मेरा क्वेश्चंट है, और ये मेरा 2 है वो मेरा रिमाइंडर है। अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं होने की वजह से जब तक 0 न आए तो ये रिमाइंडर को 2 से ही मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 है। अभी दोनों का जो क्वेश्चंट है उसका एडिशन मुझे करना पड़ेगा, 3 + 1 यानी 4, sp3 आ गया। ओके फाइन। अभी उसमें मुझे लॉन पेयर देखना है। लॉन पेयर में इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी है 4 है, sp3 का मतलब 4 है, ठीक है। माइनस उसके बगल में कितने हैं लोग हैं 3 लोग हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें एक लॉन पेयर है। आपको समझ में आ रहा है, यानी इसमें 3 बॉन्डिंग पेयर है और 1 लॉन पेयर है, यानी उसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय मुझे क्या मिलेगा इसमें 3 बॉन्डेड पेयर और एक लॉन पेयर को मैं दिखाना चाहता हूं। आप समझिए किस तरह से मैं रखूंगा, क्योंकि जो 3 बॉन्डेड पेयर और 1 लॉन पेयर को मुझे दिखाना हो तो मैं किस तरह से दिखा पा रहा हूं। अब समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन तो उसमें बॉन्डेड पेयर कितने थे, आपको बॉन्डेड पेयर कितने मिले थे वहां पे, तो कि 3 बॉन्डेड पेयर मिले थे। एमोनिया में बॉन्डेड पेयर कितने थे, बॉन्डेड पेयर फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, तो बॉन्डेड पेयर 3 थे और एक लॉन पेयर था, तो उसका शेप क्या था पिरामिडल था, तो इसका भी शेप क्या होगा पिरामिडल होगा। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। उसमें जो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो भी नियर अबाउट 107 के आसपास ही चला जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा मैं उसमें आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ, XCF4 राइट। अभी XCF4 में आप देखिए ज़ेनॉन के बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, एक फ्लोरीन के साथ 7 4 जा 28 होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 28 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो 36 होगा, तो हम उसको 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 8 है, तो 36 का 8 मींस इसका क्या मुझे मिलेगा आंसर, क्या मिलेगा 8 4 जा 32 मिला। यानी मेरा जो अभी जो क्वेश्चन है, जो मेरा क्वेश्चन है वो 4 है, लेकिन मेरा रिमाइंडर भी 4 है, तो मुझे रिमाइंडर 4 है तो उसको 2 से फिर से मैं डिवाइड करता, 2 2 जा 4। अभी मेरा क्वेश्चन क्या मुझे मिला 2, और मेरा रिमाइंडर क्या हो गया 0, यानी 4 + 2 है, तो 4 + 2 का मतलब क्या होता है 6 का मतलब क्या होता है sp3d2 होता है। sp3d2 का मतलब क्या होता है, ये होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ठीक है। मैं तो आपको समझ, लेकिन मुझे तो लॉन पेयर देखना पड़ेगा। तो लॉन पेयर के लिए मुझे मालूम है कि इसमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और इसके बगल में 4 लोग खड़े हैं, यानी 2 लॉन पेयर है। यानी बॉन्डेड पेयर कितने हैं इसके पास, बॉन्डेड पेयर कितने हैं फिर से देखिए, बॉन्डेड पेयर 4 है और लॉन पेयर कितने हैं 2 है, यानी 4 + 2 से 6 हो गया है। लेकिन उसका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, उसका क्या होगा स्क्वायर पिरामिड होगा, ठीक है। जो प्लेनर पिरामिड है मुझे कुछ ऐसा शेप मुझे मिल सकता है। आपको शेप तरफ जाना है क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशंस में इस तरह से शेप के लिए ही बात वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक के बाद एक बढ़िया एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए बाद में मैं यहाँ पे एक और देता हूँ जिसका है XCO2F2, ये मैंने दिया हुआ है, ज़ेनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड्स है, ठीक है। तो हमें मालूम है ना ज़ेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको मालूम है, कितने हो गए ऑक्सीजन के, तो कि एक में 6 है, यानी 2 में क्या होगा 12 होगा,
राइट। प्लस यहाँ पे फ्लोरीन के कितने हो गए, तो 7 2 14, इस तरह से हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए 12 + 8 यानी 20, 34, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया है 34। तो 34 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 4 32, यानी मेरे पास जो रिमाइंडर है वो वो 2 है, और मेरा जो क्वेंशंट है वो मुझे 4 मिला हुआ है। लेकिन जो मेरा रिमाइंडर 2 है तो उसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 2। अभी जो मेरा रिमाइंडर मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, और मेरा जो क्वेंशंट मुझे मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। यानी दोनों क्वेंशंट को मैं जोड़ दूं 4 + 1 यानी ये 5 हो गया है। 5 होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। और sp3d का नॉर्मल शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बायपिरामिड, लेकिन है कि नहीं ये तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें लॉन पेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा। लॉन पेयर के लिए इसमें कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सेंट्रल एटम की 5 है। उसके बगल में कितने लोग खड़े हुए हैं, 4 लोग है ना, 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, यानी इसके पास एक लॉन पेयर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके पास एक लॉन पेयर है। ठीक है, यानी 4 क्या है, बॉन्डेड पेयर है, और 4 बॉन्डेड पेयर है और एक लॉन पेयर होने की वजह से तो क्या आ जाएगा, आपको मालूम है उसका शीशो शेप होना चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ओरिजिनल शेप टीबीपी होना चाहिए। अगर कोई भी लॉन पेयर नहीं होता ना तो उसका शेप टीबीपी होता है। लेकिन टीबीपी में से जो मैंने आपको समझाया था एक बार कि भाई इसके पास 4 बॉन्डेड पेयर है और एक लॉन पेयर है, तो किस तरह से हम उसको समझा सकते हैं। तो मैंने आपको एक बार जो बेंड्स रूल था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जैसे मेरे पास बॉन्डेड पेयर है, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे जो बॉन्डेड पेयर है वो मेरे पास 4 बॉन्डेड पेयर है। ठीक है, और मेरे पास लॉन पेयर कितनी है, तो लॉन पेयर 1 है, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, शीशो शेप आना चाहिए। ये आपको समझना है कि इसका शेप क्या आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ फाइन, मैं बाद में मैं आपको थोड़ा लिस्ट भी कर दूंगा। एक्सीओ जैसे मेरे पास एक और यहाँ पे एग्जांपल्स में यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। एक्सीओ F4 यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सीओ 4 में क्या होगा, देखिए आप, जेनॉन में 8 है, यहाँ पे कितने हैं 6 है, और यहाँ पे कितने होंगे 7 4 28। यानी आप देखेंगे कि 8 और 6 14 + 28, 14 + 28 आता है 42 आएगा, 42। ओके, 42 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 40, यानी मेरा रिमाइंडर है यहाँ पे 2 है और मेरा क्वेंशंट है वो यहाँ पे 5 है। ठीक है, अभी जो 2 है उसको भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 2 1 2, यानी अभी जो मेरा जो रिमाइंडर है अभी 0 हो गया है। ठीक है, मेरा जो क्वेंशंट आ रहा है वो 1 आ रहा है अभी, तो दोनों क्वेंशंट को मैं जोड़ दूं तो ये 6 हो जाएगा, यानी 5 + 1 यानी ये 6 हो जाएगा। 6 होने की वजह से ये sp3d2 हो जाएगा। sp3d2 का ओरिजिनल से ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ये है या नहीं ये मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, इसमें लॉन पेयर कितने होते हैं, इसका जो फॉर्मूला है क्या है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है 6 है, यानी इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है, और उसके अगल बगल में कितने लोग पड़े हुए हैं, यानी 5 है, यानी 1 है। यानी इसमें क्या हुआ है तो कि 5 है, 5 बॉन्डेड पेयर है, और 1 क्या है तो कि 1 लॉन पेयर है। तो 5 बॉन्डेड पेयर और 1 लॉन पेयर जब मुझे मिलता है, ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो उसका जो शेप है वो मुझे क्या मिलेगा। अब देखिए 5 बॉन्डेड पेयर 1 लॉन पेयर की वजह से वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि XeO4 का जो ओरिजिनल शेप है वो स्क्वायर पिरामिड है, होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल। तो ये दोनों, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आपको जो MCQ पूछेंगे उसमें ऑक्टाहेड्रल भी लिखा होगा, स्क्वायर पिरामिड भी होगा, तो आपका आंसर स्क्वायर पिरामिड आना चाहिए। वो लॉन पेयर की वजह से आ रहा है। तो वो जो हमने VSEPR में देखा था ना कि कितने इसके पास लॉन पेयर होते हैं, क्यों होते हैं, तो किस तरह से हम उसका काउंटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने XeO F4 बताया, XeO2 F2, XeF4 भी बताया था मैंने, फिर मैंने XeO3 बताया था, इसके पहले वाटर, PCl5, NH3CH4, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। अभी देखिए मैं एक और कंपाउंड आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, वो है ICl2-1। अभी क्या होगा देखिए, ICl2 में हमें मालूम है कि आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 14, और ये एनाइन होने की वजह से एक और मुझे लिखना पड़ेगा, एक और ऐड करना पड़ेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में,
यानी जो मेरा आंसर है वो 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 डिवाइडेड बाय 8 मुझे करना पड़ेगा, तो 8 2 जा क्या होता है 16 होता है 16। ठीक है, तो अभी कितना हुआ यहाँ पे कितना है 6 इसका जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी जो 6 होता है तो उसको भी मैं 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, अभी मेरा 0 0 आ गया है। ठीक है, तो पहले में यहाँ पे आप देखिए तो कि यहाँ मेरा रिमाइंडर था 6 और मेरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन क्या था 2। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 और उसका क्वेश्चन क्या आ रहा है 3, यानी मेरा 3 + 2 दोनों क्वेश्चन को मिला के मेरा आंसर क्या आता है 5। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या होता है, इसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, यानी उसका ओरिजिनल शेप टीबीपी होना चाहिए। लेकिन हमें फाइनल नहीं करना है पहले कि इसका शेप टीबीपी है या नहीं है, मुझे क्या देखना पड़ेगा उसमें लॉन पेयर का कुछ लफड़ा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो देखिए मैं लॉन पेयर दिखाना चाहता हूं, तो उसमें टोटल कितना है 5 और उसके बिल्कुल बाजू में कितने हैं 2, यानी इसमें लॉन पेयर 3 है, यानी इसमें 2 बॉन्डेड पेयर है और 3 क्या है लॉन पेयर है। तो हमें मालूम है ये जो 3 लॉन पेयर है वो बेंट रूल में कहाँ पे रहेंगे, इक्वेटोरियल में रहेंगे। 2 बॉन्डेड पेयर कहाँ पे रहेंगे, एक्सियल में रहेंगे, यानी इसका जो शेप मुझे यहाँ पे मिलेगा वो बिल्कुल लीनियर शेप में चला जाएगा। उसका जो शेप होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, बिल्कुल लीनियर शेप में मुझे मिल सकता है। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि तीनों लॉन पेयर मैंने कहाँ पे रखे हैं आपको देखना पड़ेगा। क्लियर, फाइन, आपको समझ में धीरे 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 आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाँ मेरी तरह। ठीक है, फाइन। अभी मैं जो एक और यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है NH4+। अभी कितने हैं इसमें लॉन पेयर कितने हैं, सॉरी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, इसमें 4 और -1 मुझे करना पड़ेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्लस है, यानी इट्स इन कैटायन फॉर्म, राइट। तो उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 8, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 4 जा 8। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर तो पहले से 0 आ रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या है 4 का मतलब है उसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होनी चाहिए, यानी sp3। अगर sp3 है तो उसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन है तो उसमें मुझे लॉन पेयर ढूंढने पड़ेंगे। तो लॉन पेयर का मेरा फॉर्मूला क्या है 4 - 4 यानी 0, यानी इसमें लॉन पेयर है ही नहीं, यानी सिर्फ 4 बॉन्डेड पेयर है, यानी इसका परफेक्ट जो शेप है वो टेट्राहेड्रल ही आएगा। आपको समझ में आ रहा है, एमोनियम आयन का मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, एमोनियम आयन का। फिर से मैं आपको और यहाँ पे एक और दिखाना चाहता हूँ, ClO3-1। क्या दिखाया मैंने, ClO3-1। तो ClO3-1 में क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7, 6 3 जा 18 इसके पास है, और एक मुझे ऐड करना पड़ेगा, यानी ये 26 हो जाएगा। 26 डिवाइडेड बाय 8, सो 8 3 जा 24, यानी 2, यानी मेरा जो रिमाइंडर है वो 2 है। मेरा क्वेश्चन क्या है 3 है, जो 2 है तो फिर से 2 2 1 जा 2, राइट 0। अभी उसका रिमाइंडर क्या आ गया है 0 आ गया है। क्वेश्चन क्या मुझे मिला है, अभी देखिए क्वेश्चन क्या मुझे मिला है, एक दोनों क्वेश्चन को मिला के 3 + 1 यानी इसमें 4 है, यानी ये sp3 में होना चाहिए। लेकिन मुझे तो लॉन पेयर ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लॉन पेयर के लिए इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उसके बाजू में एक ही है, यानी इसके पास एक लॉन पेयर है। यानी बॉन्डेड पेयर कितने हैं 3 बॉन्डेड पेयर है और एक लॉन पेयर होने की वजह से उसका शेप क्या आ जाएगा, पिरामिडल शेप मुझे मिलेगा, पिरामिडल होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल धीरे धीरे देखिए। फिर से SF4 मैंने वो लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, SF4 सल्फर के बगल में कितने होते हैं 6, यहाँ पे कितने होते हैं 7 24 28, 7 4 जा 28, कुल मिला के कितने हो गए हैं 34, विच इज डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32 यानी 2, यानी मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है 4, रिमाइंडर क्या आया है 2, सो 2 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो 2 1 जा 2 0, यानी इसका क्वेश्चन मुझे क्या मिला है 8, उसका रिमाइंडर अभी क्या हो गया 0। तो दोनों को मिला के 4 + 1 यानी 5 का मतलब क्या है, इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होनी चाहिए sp3d। अगर sp3d में कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो उसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उसका बेस्ट शेप होना चाहिए, लेकिन है ये मुझे पता नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें लॉन पेयर ढूंढना पड़ेगा। लॉन पेयर के लिए उसमें तो 5 है, उसमें 4 है, यानी इसके पास एक लॉन पेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 4 बॉन्डिंग पेयर है और एक लॉन पेयर है। और लॉन पेयर कहाँ पे रहेगी, टीबीपी में लॉन पेयर कहाँ पे रहती है, बेंट रूल, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, तो
जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं तो SF4 का जो शेप मुझे मिलेगा वो शीशो शेप मुझे मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने SF4 का आपको समझाया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं एक और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है NO2-1, सॉरी NO2+1 करते हैं, ठीक है। पहले हम +1 लिखते हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। NO2+1 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 6 2 12, -1 मुझे करना पड़ेगा क्योंकि प्लस है, इसलिए केटाइन है तो एक कम कर देना है, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो 17 यानी 16 आ गया, तो 8 2 16 यहाँ मुझे मिल रहा है, यानी 0 है, यानी मेरा क्वेंशन ही 2 है और मेरा रिमाइंडर पहले से ही 0 है। अगर 2 होता है तो मुझे मालूम है कि sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर इसमें लॉन पेयर है या नहीं, sp का मतलब होता है इसमें 180 का बॉन्ड एंगल होना चाहिए और वो लीनियर होना चाहिए, लेकिन है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है। तो फर्स्ट फाइंड आउट द लॉन पेयर। तो लॉन पेयर के लिए क्या है? 2 है, इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उसके अगल बगल में 2 ही एटम्स रहते हैं, यानी लॉन पेयर 0 है, यानी परफेक्ट लीनियर है और 180 के पर ये खड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना आपको? इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। NO3-1 का भी मैं दिखा रहा हूँ। NO3-1 में हम क्या करेंगे? देखिए इसमें 5 है, इसमें 18 है और एक डालना पड़ेगा ना क्योंकि एनाइन फॉर्मेट में है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 24 यानी 0। अभी मेरा जो क्वेंशन है वो मेरा 3 है और मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 है, यानी 3 होने की वजह से वो sp2 होना चाहिए। sp2 का मतलब होता है कि वो प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए और बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन है या नहीं मुझे पता नहीं है, तो मैं लॉन पेयर ढूंढूंगा। तो उसमें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटली 3 है और उसके अगल बगल में भी 3 है, यानी 0 है, यानी ये परफेक्ट sp2 में है और उसका जो प्लेनर है, प्लेनर शेप मुझे मिल रहा है और बॉन्ड एंगल 120 का मुझे मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके फाइन। ये कुछ मैंने एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। ये जो भी मैंने होमवर्क में दिए हैं वो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने दिए हुए हैं। देखिए ये NF3 है, SO2 है, ClF3, BrF5, SbH3, OF2, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, SeCl2, फॉर्माल्डिहाइड, XCF2, IF5, BrF3, IOF5, ICl4-, SOF4, I3-1, TeF5-, IF7, ये कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। आप उसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा ये पहला होमवर्क का मैं आपको समझाऊंगा और भी थोड़ा एग्जांपल दूंगा, ताकि आपका जो ये पोर्शन है वो बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको कुछ डिसाइड कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।